एफपीएनए डोमेन है क्या और ये इतना पॉपुलर आजकल क्यों हो रहा है? मतलब आज से 5-6 साल पहले हम पूछते थे कि भाई आपको कहाँ जाना है, तो या तो आंसर होता था स्टैट्यूटरी ऑडिट, या कोई कोई बोलते थे इंटरनल ऑडिट, या फिर टैक्सेशन में आपके डायरेक्ट टैक्स या जीएसटी। आजकल हमने पोल कराया, अभी आपके सेशन से पहले हमने पोल कराया, एंड देयर वर अबाउट 40% पीपल हु वर इंक्लाइन टुवर्ड्स द एफपीएनए डोमेन। तो ऐसा क्या है इफ डोमेन में, और क्यों जनता इफ डोमेन की तरफ जाना चाहती है? वी वांट टू हियर फ्रॉम अभिनव सर एंड गौरव सर, सो व्हाट इज दिस डोमेन ऑल अबाउट? Okay, so Gaurav, I think let me answer this. Sure, no. Okay, so I believe you might have heard about CFO. Okay, CFO is the Chief Financial Officer of the organization who is responsible for managing the overall financial health of the organization. So CFO has a lot of functions. One of the functions being accounting, audit, taxation, and one the most interesting and the critical function is FP&A. तो FP&A, व्हाट इज FP&A? जैसे अर्चित सर ने आपको एक फॉर्म एक फुल फॉर्म बताई, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, एंड यू माइट हैव हर्ड, अगर आप गूगल भी करोगे, उसकी डेफिनेशन यही है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, बट दैट इज नॉट एटलीस्ट हाउ मी एंड गौरव सर डिफाइंस इट. हमारे लिए FP&A की एक डिफरेंट फॉर्म है, एंड उस form say we kind of lay out the entire broader perspective, what really is expected from anyone when they join any FP&A team. So guys, F stands for forecasting and budgeting. Okay, so a very important thing, for any CFO or for any organization is to prepare the budget. Okay, so budget banana सबसे important है. You might have heard about annual operating plans, 5-year plans. There are different methods to calculate or do a budget. Like a top-down budgeting methodology, bottom-up, driver-based. These days, people are also following machine learning to arrive at budgets. So it starts with budgeting, and then there is a concept of forecasting. Okay, so forecasting is that how much closer you are to the reality. So forecasting has different cycles. Quarterly भी होता है, monthly भी होता है, half yearly भी होता है, depending upon the type of organization. So F stands for forecasting and budgeting. P stands for performance management. Performance management is some, if you have to analyze what has really happened in the past. आपकी लास्ट मंथ की क्या परफॉर्मेंस है, आपकी लास्ट 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस क्या है, एंड have you achieved the budget, have you not achieved the budget, what were the reasons, what were the drivers. So that is what we do when we measure a performance management and KPIs. And very important part for an FP&A team is to arrive at the drivers, strategic insights, और वो आपको करना पड़ता है, and that is what P is stands for. And A stands for ad hoc reports. तो इट्स नॉट, अगर आपने सुना होगा कि इट्स नॉट कि हमें बस बजटिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी है, बट देर आर लॉट ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट्स, राइट? फॉर एग्जांपल एक SaaS कंपनी है, फॉर एग्जांपल अ कंपनी लाइक नेटफ्लिक्स, उनके लिए हमें कस्टमर एनालिसिस करना पड़ता है, राइट? व्हाट इज द चर्न रेट, व्हाट इज द रेपिटेशन, व्हाट इज द कस्टमर लॉस्ट, सो हमें हर कंपनी स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट एड हॉक रिपोर्ट्स करनी पड़ती है. एंड इफ योर कंपनी हैज मल्टीपल स्टेक होल्डर्स लाइक लेंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, तो सबके लिए डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाई जाती है, जस्ट टू इंश्योर वी आर गिविंग देम राइट विजिबिलिटी. तो गाइस, FP&A को आगे से हम फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस नहीं बोलेंगे, इट इज फोरकास्टिंग, बजटिंग. P stands for performance management. A stands for ad hoc reports. Gaurav, would you like to add something to this? No, I think Abhinav, you have beautifully explained it, and that's how like I and Abhinav generally like to define FP&A. Uh, just like one small thing I'll add on to your thing, and I'll just like bring everybody to the basic drawboard where I'll say that, see, when I talk about from a company's perspective, there are two things. One is reporting your actuals, and that is generally what most of the people, or like 90% of the crowd still in CA is basically focused towards, या वो लोग अभी वहीं पे है, which is basically your financial reporting, जहाँ पे आप अपने सिर्फ actuals report कर रहे हो, या आप taxation department में हो, and taxation is also always backward looking.
but FP&A is the only like department which is like totally and totally पूरा forward looking है. So आप आज जहाँ पे खड़े हो, आप अपनी कंपनी के वही जैसे अभिनव was explaining that there you have to do forecasting, you have to prepare budgets, you have to do planning. So all of these activities are like forward looking. So that's where actually जो value आती है FP&A के अंदर, plus the यहाँ पे आपके नंबर्स या आपकी टेक्निकल नॉलेज ज्यादा काम नहीं आती. यहाँ पे बेसिकली यू हैव टू लाइक डीप डाइव इनटू द बिजनेस. एज अभिनव अगेन वाज मेंशनिंग, जब वो केपीआईज की बात कर रहा था या जब वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात कर रहा था, दैट ओनली कम्स विद व्हेन वंस यू अंडरस्टैंड द बिजनेस. एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बिल्कुल उनके पार्टनर की तरह चलना. इट्स नॉट लाइक कि आप आके उन्हें एक टीचर की तरह डांट दोगे या कुछ कर दोगे. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि if somebody is not able to perform or is not able to meet what was expected out of them, so what are the reasons, how we can solve them. So ये जो दो तीन critical skills है, all these are like very important to have while you are in FP&A. and यहीं से आज के टाइम पे, या जैसे अर्चित was also mentioning अभी, कि ज्यादातर लोग अब FP&A is like in the news or in a way is the hottest sort of profile right now in finance. उसका कारण ही यही है, बिकॉज आप जब फॉरवर्ड लुकिंग बातें करोगे, सो दैट्स हाउ आप वैल्यू ऐड कर रहे हो एक कंपनी में. एंड इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइक वी हैव क्रीमी प्रोफाइल्स. आपको काफी अच्छे मतलब यू गेट टू सिट विद सीएफओ डे इन डे आउट. आप डायरेक्टली उनके साथ काम कर रहे होते हैं विद योर फाइनेंस कंट्रोलर. एंड ऑल्सो द पे पैकेजेस आई वुड से relatively to other profiles in finance is better in FP&A. तो गौरव सर, एक ना आपके सीएफओ वाली बात से एक प्रोफाइल ध्यान आई जिसको बोलते हैं सीएफओ एडवाइजरी आजकल. इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाओ कि ये प्रोफाइल भी इज बीइंग ऑफर्ड बाय द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स, तो इस प्रोफाइल में भी कुछ एफपीएनए वाला काम होता है और इसमें भी क्या जाना चाहिए? व्हाट आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड इन दिस प्रोफाइल? सो अर्चित, आपने बिल्कुल सही मेंशन करा. आजकल जो बिग फोर्स है स्पेशली लाइक बिकॉज जैसे अपने ऑडिट पे अब काफी रेस्ट्रिक्शंस है, बुक कीपिंग जो अलाइड सर्विसेज था पोस्ट 2013 कंपनीज एक्ट, काफी इनको भी अपना चेंज करनी पड़ी स्ट्रैटेजी. एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ एडवाइजरी, आजकल इन्होंने पिछले 1-2 साल से सीएफओ एडवाइजरी करके स्पेशली बिग फोर्स काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है. एंड इनको भी समहाउ एज आई वाज मेंशनिंग कि एफपीएनए में थोड़ा पैसा आपको बेटर मिलता है, बिकॉज अगर आप कोई फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस कर रहे हो. सो फॉर एग्जांपल, आज जब मैं बीमार हो चुका हूँ, तो अगर मेरे को कोई पहले ही बता दे, यार तू 2 दिन बाद बीमार हो सकता है, तू अपने लिए कैसे प्रिकॉशंस ले सकता है, तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा और मैं शायद डबल पैसे भी दे दूंगा. बिकॉज इसी मतलब कौन बीमार होना चाहेगा? एक बार अब मैं बीमार हो गया और डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन अ वे, जस्ट दैट कि ठीक है वो करना है. तो अभी जो हमारे हिस्टोरिकल चीजें, बीट ऑडिट, बीट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग हम जिसे बोलते हैं, तो ये सब हम मतलब इन वे बस हमें करना है. बिकॉज हम लॉज है, कंप्लायंसेस है, उन सबको हमें कंप्लाई करना है. बट एफपीएनडे एक लौता ऐसा डिपार्टमेंट जो फॉरवर्ड लुकिंग है, तो इसलिए जो ये सीएफओ एडवाइजरी है. अब क्या एफपीएनडे के ना मार्केट में काफी अलग अलग नाम है. अब जैसे अभिनव और मेरी एक डेफिनेशन है, एक तो स्टैंडर्ड यही इसकी डेफिनेशन है, which is financial planning and analysis. How I really see FP&A these days, हम हमारा टाइम छोड़ देते हैं 4 साल पहले क्या था, बट आज की बात करें, I can see it going in two directions. Okay, one is consulting and another is products. So when I say about products, right, there are a lot of FP&A dedicated tools, like SAP, BPC, Adaptive, Anaplan. So lot of companies, from my experience, even overseas and in India, are migrating to such products. And for that, they are looking for people who can support in such product implementations, learn these products, and handle these products, right? So this is more like FP&A product profiles, and a lot of big fours are also hiring. When I say about CFO advisory, I was talking to one guy. He was learning Anaplan. While he was in a CFO advisory function. Okay, so FP&A market is going towards products. Okay, and the second, it is going towards core consulting. And when I say core consulting,
it means that you are supporting CFOs, working Exactly. with them and creating that strategic insights, right? So that is how I would really break it down. Like today, Right. products and consulting, and the profiles can be different, okay, but Right. यही पे दो डायरेक्शन में जा रहे हैं. That is how हम्म. can I can say that. सर कुछ अगर हम कोई ऐसा डैशबोर्ड देख पाए, जब आपने मास्टर क्लास बनाई थी तो आपने एक फिर डैशबोर्ड दिखाया था एक्सेल का, जिसमें हमने कुछ फिगर डाली और बढ़िया तरीके से आउटपुट निकल के आ गया, जो पूरी आपने ऑटोमेटेड शीट बनाई हुई है अपने क्लाइंट्स के लिए, वैसा कुछ अगर हम दिखा पाए तो उससे एक विजुअलाइजेशन हो पाएगी कि भाई किस तरीके के यहाँ पे टेम्पलेट्स बनते हैं, किस तरीके के फाइल्स एंड डिलीवरेबल्स बन पाते हैं इन द फील्ड ऑफ एफपीएन सर. श्योर सर. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ and I'll show some deliverables. Like everybody, this is basically a reporting pack which basically measures the performance. जो कि अभिनव सर ने P की definition दी थी, performance management. So for see what happens, I'll just like try to summarize in 1 minute and recap, and then I'll start from here. So अभिनव सर ने पहले बोला था कि एक चीज होती है आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो, which is जो आपके एक्चुअल्स आप उसे रिपोर्ट कर रहे हो. सेकंड है कि आपने कुछ फोरकास्ट भी किया होगा. फॉर एग्जांपल अब जैसे आप एग्जाम्स दे रहे हो, आप भी सोचते हो यार मैं इतने नंबर लाऊंगा, और फिर एक्चुअल में जब आप एग्जाम दे के आते हो, आप फिर उसको कंपेयर करोगे कि यार मैंने 90 का टारगेट करा था, मेरे एक्चुअल में 90 से या ऊपर या नीचे आ रहे, तो व्हाट आर द रीजंस. सो दिस इज बेसिकली जस्ट डूइंग दैट कि कंपनी ने ऑलरेडी अपना एक बजट बना रखा है जिसमें उन्होंने मंथ वाइज अपने टारगेट्स रख रखे, दैट पर इन दिस पर्टिकुलर मंथ हमारा रेवेन्यू इतना आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट इतना आएगा. एंड देन एक्चुअल्स में वॉट एवर जो उनके रिजल्ट्स आए हैं वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन दे आर बेसिकली डूइंग द वेरिएंस एनालिसिस, जो कि हम फाइनल में कॉस्टिंग में भी इन अ वे पढ़ते हैं. सो दिस नाउ इज अ डायनेमिक पैक जहाँ पे ये आपको जो ये ग्रे कलर्ड सेल्स दिख रहे हैं, ये सारे ही डायनेमिक है. एज सुन एज आई चेंज एनी वैल्यू इन दीज 4 सेल्स, सो जो मेरे पीछे ये रिजल्ट्स है या नंबर्स दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम विल लाइक विद इन अ सिंगल क्लिक गेट चेंज. सो फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ देख रहे हो ये एक्चुअल्स का सेक्शन है कि जो आपने एक्चुअल में परफॉर्म किया, दीज आर दोज नंबर्स जहाँ पे आपका अभी अगर आप यहाँ देखोगे कि जो हमने पीरियड चूज किया हुआ है विच इज जून 23, सो दिस इज द करंट मंथ जिसके लिए पीरियड इन रिव्यू, दिस इज द प्रीवियस मंथ, ये उसका क्वार्टर टू डेट, ईयर टू डेट, और लास्ट 12 मंथ्स के नंबर है. देन ये बजट का नंबर है. एंड BW here stands for better और worse versus budget, कि हमने बजट से बेटर किया या वर्स किया. सो जो भी यहाँ पे नेगेटिव है, that means you are performing worse than your budget, and positive means you are actually better versus your budget. So now if I change this value, let's say Jan 23 or Feb 23 जैसे अगर मैंने किया, so just note कि all these values, all these column dynamically they have changed just with one single click. Similarly अगर अब मैं इसमें ये डिस्प्ले यूनिट, अभी नंबर्स वहां पे आपको एब्सोल्यूट्स में दिख रहे हैं, अगर मैं चाहूँ ये नंबर थाउजेंड्स में देखना, तो यू विल नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैज चेंज. एंड सिमिलरली अगर मैं इसे मिलियंस में कर दूं, तो अगेन दिस विल चेंज. एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट सेगमेंट्स और एंटिटी चूज करने का भी ऑप्शन है. सो अगर आपको सारी देखनी है, जैसे यहाँ पे ये 7-8 डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है, नाउ से इफ आई वांट टू सी फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट आई कैन डू. एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अभी आपको ये 6 या 7 एंटिटीज का ऑप्शन दिख रहा है. ऑल दिस इज ऑल्सो डायनेमिक. अगर अब मैं यहाँ पे किसी और सेगमेंट को चूज करता हूँ, दिस विल ऑल्सो एक्चुअली चेंज. अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, एंड अब यहाँ पे सिर्फ इन्हीं के नंबर आएंगे. अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, क्योंकि अभी मिलियंस में था, नंबर काफी छोटे होंगे क्योंकि एक छोटा सा एंटिटी होगी. सो मे बी अगर मैं एब्सोल्यूट में करूँ तो शायद कुछ नंबर इसमें होंगे ही नहीं, या तो नंबर. सो दिस इज हाउ लाइक आपको इस तरीके के डिलीवरेबल्स बनाने पड़ते हैं एफपीएनडे फील्ड, बिकॉज आपसे काफी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपकी टीम मतलब आपकी मैनेजमेंट है, that you have to like your turnaround time is very less and you have to produce the results in a very quick based manner. So इस तरीके के कुछ deliverables बनते हैं. तो यहाँ पे अभी एक्चुअल वर्सेस बजट, इसी को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट
या इसी को वेरिएंस मैनेजमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा स्टैंड्स फॉर इन एफपी इंडिया एज पर मी एंड अभिनव। एंड जो ये बजट वाला सेक्शन है, दिस इज बेसिकली फॉरकास्टिंग, बजटिंग या प्लानिंग। ये कैसे करते हैं, तो अगेन लाइक वी कैन हैव अ डिफरेंट सेशन ऑल टुगेदर बिकॉज दिस इज वेरी डिटेल्ड टॉपिक इन इटसेल्फ। सो दिस इज वन थिंग। अब फर्स्ट चीज ये है कि आप इस तरीके के फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नंबर्स पे लाके दिखाओ कि अच्छा इन नंबर्स एज वेल एंड इन परसेंटेज ये आपका कैसा दिख रहा है या कितना डिफरेंस है। वंस यू हैव एक्चुअली अचीव्ड इट, सो मैं आपको एक बारी कुछ एडवांस विजुअलाइजेशंस भी दिखाता हूँ जो कि हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। और ये जो बट डैशबोर्ड था सर, ये पूरा एक्सेल पे बना हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर से नहीं निकला हुआ है ये? ये पूरा एक्सेल पे बना हुआ है। एंड इसमें मैं Right. आपको अभी एक चीज और बताऊंगा। मैं आपको पहले एक एडवांस थोड़ी विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ और मैं फिर आपको एक्सेल में ये किस तरीके की कैपेबिलिटीज आज के टाइम पे आ चुकी है और आप कितना एडवांस सोच सकते हो एक्सेल पे, मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल दूंगा। सो अभी आप जैसे देख रहे थे कि हमने बजट और एक्चुअल का देखा था। अब ये सोचो कि अगर एक इस तरीके का अर्चित सर एक आपके पास वेरिएंस चार्ट आ जाए, आपको कितने सही से समझ आ रहा है कि मेरा रेवेन्यू ग्रीन में है, इतने से ज्यादा ओवरशूट करा, आपने सोचा था 1000 आप रेवेन्यू लाओगे बट एक्चुअल में 9767 आया। अब यही अगर मैं इसको 10,000 कर दो, इमीडिएटली ये चार्ट बदल जाता है। और आपको लाइक अब क्या Okay. है कि जनरली जब हम अपने मतलब हम सब जैसे यहाँ पे आर्टिकलशिप लोग कर ही रहे हैं, वो कोई अपना रिजल्ट दिखाते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर आपके सामने आप सीएफओ या जिनके पास इतना टाइम नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट, कुछ इस तरीके के अगर हम बढ़िया से चार्ट दिखा पाए, आपको इमीडिएटली अर्चित सर 1 मिनट में शायद सब समझ आ गया होगा कि क्या चीज बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल। क्या चीज गलत है और कितना नंबर है। और सो सर मेरे को तो अपने बिग फोर के भी दिन याद आ गए, उसमें भी हम वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए 1-2 दिन का टाइम मांगते थे। ये जो आपने इमीडिएटली एक झटके में करके दिखा दिया, इसके लिए हम 1-2 दिन का टाइम मांगते थे। तो दिस इज Yeah, सो I think अमेजिंग। everything is automated, Archit. हाँ, दैट्स सो अमेजिंग। ग्रेट। सिमिलरली अब मैं आपको एक और एडवांस लेवल का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो बजट का नंबर है वो ये ग्रे लाइन से इंडिकेट कर रहा है। ये जो येलो में है, ये एक्चुअल में जो आपका है। तो यहाँ पे आपके जैसे जैन पीरियड में आप देखोगे आपने 100 का बजट लिया था और ये एक्चुअली एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएंस है ना 6 का, ये ग्रीन में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आपने जो सोचा था कि मैं 100 रुपए का खर्चा करूंगा बट एक्चुअल में 34 का ही हुआ, सो इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू। सो इसलिए ये ग्रीन कलर है। बट अगर मान लो कि मैं इसको एक बार के लिए 20 कर दूं, ये देखो ये रेड हो गया। राइट। तो इस तरीके, सार्थक। अगेन ऑल दिस सार्थक। इज वेरी डायनेमिक राइट। एंड अगेन दिस राइट। इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन दैट आई एंड अभिनव जनरली लाइक। सो हम इस तरीके के एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं वंस आर फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स आर इन ग्रिप, बिकॉज ऑल दिस इज जस्ट प्रेजेंटेशन। एंड इससे भी और भी बेहतरीन काफी प्रेजेंटेशंस है जो कि मतलब टेम्पलेट्स है मेरे और अभिनव के पास, which again we can showcase in another time. Now coming back to अर्चित सर का जो क्वेश्चन था, तो अगेन ऑल दिस इज जस्ट डन इन एक्सेल। इसमें कोई एडवांस कोई एलियन आइटम हमने कुछ नहीं घुसाया है। ऑल दिस इज डन विद द बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ एक्सेल ओनली, जो कि हमने अर्चित सर की मास्टर क्लास से ही सीखा था एक्सेल राइट। वाले। तो उसके यहाँ तो अब गौरव सर, आजकल यहाँ तो चार्ट में हड़कम मच गया है कि सार्थक पूछे कि एक्सेल पे प्रिपेयर करे जा सकते हैं क्या ये? हाँ बिल्कुल हाँ, ये गाइस। एक्सेल से ही और किया है। ये गौरव सर, अभिनव सर ने एफपीएनए मास्टर क्लास में आपके हाथ से आपको प्रिपेयर करवाए हैं, जिसकी हम बात आगे करेंगे। अगर आपको ये सब कुछ प्रिपेयर करना सीखना है तो आप कहाँ से सीख सकते हो? शिल्पा पूछे, डू वी नीड नॉलेज ऑफ फैप फॉर दिस प्रोफाइल? नॉट एट ऑल। ये सारे डैशबोर्ड्स के लिए आपको कोई फैप की नॉलेज होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास एडिशनल टूल्स की नॉलेज होगी तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज। कौन से वो टूल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उनकी ही बात हम करेंगे। बट दिस इज ऑल ऑफ दिस हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन एक्सेल ओनली। राइट। एंड इसके अलावा अब जैसे आप सिंस एसएपी आप लाए अर्चित सर, तो एसएपी क्या है कि ईआरपी है। एंड और भी ईआरपी हो सकते हैं एसएपी के अलावा, जैसे नेटसूट हो गया, सेज हो गया, क्विक बुक्स हो गया, आपका टैली भी एक तरीके का ईआरपी है। तो राइट। आज के टाइम पे अगर आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल पे हो, प्लस आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल साइड अगर आप नॉलेज रखते हो, आपको क्लाउड क्लाउड का हल्का फुल्का आइडिया है, तो आज के टाइम पे सर ये भी पॉसिबल है कि आपकी हम्म। जो एसएपी है, जहाँ पे हम्म। आपके नंबर्स आप मतलब एक आपका जो अकाउंटेंट है वो जैसी एंट्री पोस्ट कर रहा है और जो भी उसके चक्कर में बैलेंस शीट में या आपके पीएनएल में चेंज हो रहा है, हम्म। इमीडिएटली वो सारे नंबर्स आपके एक्सेल में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होंगे ऑन रियल टाइम बेसिस। जैसे अभी आपने अर्चित सर अगर एक एंट्री हम्म। पोस्ट करी,
इमीडिएटली इस फाइल में एक्सेल के अंदर वो यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे। तो वी अच्छा। हैव दैट आल्सो, बट हम्म अभी आई वुड नॉट लाइक टू लाइक हम्म showcase during this हम्म demo. Again, we can have a हम्म separate session for that. हम्म Otherwise, I think it हम्म could be too much for the हम्म students as well to digest. हम्म। So उस मेरे को तो तरीके की बहुत मजा बिल्कुल आ रहा कैपेबिलिटी आ गई है। है। I Uh, think, Archit, I just want to add one thing here. Because you brought the topic of tools, and I'm, reading comments, right? So, हम्म लोग कह रहे हैं मैं आना प्लान की सर्टिफिकेशन करो, सैप करो. Guys, ये सारी बात की बातें हैं. Let's get our basics first. Okay. पहले FP&A सीखो, फंडामेंटल सीखो. एक्सेल इज द ब्रेड एंड बटर. पहले एक्सेल पे कमांड बनाओ. Once you have learned Excel, then go to basic BI tools like Power BI, Tableau, learn that. Then go to Python. You have to learn Python if you have to really understand, what kind of data modeling can be performed. Okay. तो पहले आप ये basic, this is a roadmap if you want to become a good data analyst, because data analyst is a very essential skill in FP&A profession. Okay. अगर आप आज के टाइम पे डेटा एनालिस्ट नहीं हो, स्मार्ट नहीं हो, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है, you cannot really make it big. Okay. So you have to follow a basic roadmap first, then you have to go for advanced certifications. Then आप Anaplan की ले लो. You can go for Sage and lot of tools. I can say that on my tips 100-150 tools है मार्केट में अभी, and you can learn as much as you want. But again, this organization mein you are aiming, if you are planning to go into a manufacturing company, then research ki kaun sa FP&A tool is being used by manufacturing industry, and learn that. You should not learn unstructuredly कि आप कुछ भी सीख लो. पहले अपना विजन बनाओ कि किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, किसी कोर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है, and उसके हिसाब से what are the tools that are used by that industry. Then aim for certifications, not required at the entry level. When you want to go into entry level, आपको FP&A में जाना है, just follow simple roadmap: Excel, Power BI, Tableau, and Python. ये चार चीज करने से पहले you have to but learn finance. FP&A क्या है, वो भी ऐसा नहीं कि पहले आपने एक्सेल सीखना शुरू कर दिया तो एग्जैक्टली। उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है. Hey, राइट। plus तो I'll just very quickly add one thing. जो अभिनव भी बोल रहा था कि ऐसे सीखने को देना, देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स, उसका कोई एंड नहीं है, आप बस लगे रहोगे और आपको स्टिल लगेगा कि मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, बिकॉज कंपनी टू कंपनी, मार्केट टू मार्केट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कभी कोई ट्रेंड में होता है, कभी कोई ट्रेंड में होता है. बट वॉट आई वुड लाइक टू से इज कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द टूल, टूल इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म. जो आपका राइट। कॉन्सेप्ट है वो सेम है. अब जैसे अभिनव सर और मुझे, हम दोनों को एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन, टैबलू अच्छे से आता है. बट जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, या जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे साथ रखी जाती है, हमारे सामने रखी जाती है, तो जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर आपको टूल पे कोडिंग आती भी हो, कैसे करना है, क्या करना है, फायदा क्या, आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे. तो आई थिंक दैट वो जो थॉट प्रोसेस है, थॉट क्लैरिटी है, वो जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, वो होना काफी जरूरी है. जैसे अभिनव भी बोला था, पहले आप एफपीएनए के कोर प्रिंसिपल्स को सीखो, समझो, हम्म उसके बाद आप फिर एक टूल मास्टर करना स्टार्ट करो. एंड आई थिंक फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल, फर्स्ट टूल दैट एवरीबडी शुड मास्टर इज डेफिनेटली एक्सेल. वंस यू हैव डन दैट, देन टैबलू पे जाओ आप, या टैबलू या पावर बीआई, बेस्ड अपॉन जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज करना चाह रही है, जो उनकी प्रेफरेंस है. एंड देन उसके बाद अगर आप और ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो पाइथन है, एसक्यूएल है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज Even वेल. generative AI, Gaurav. I think you Yes. have missed out. Generative AI. Because you brought the topic of tools, and I'm, reading comments, right? So हम्म लोग कह रहे हैं मैं आना प्लान की सर्टिफिकेशन करो, सैप करो. Guys, ये सारी बात की बातें हैं. Let's get our basics first. Okay. पहले FP&A सीखो, फंडामेंटल सीखो. एक्सेल इज द ब्रेड एंड बटर. पहले एक्सेल पे कमांड बनाओ. Once you have learned Excel, then go to basic BI tools like Power BI, Tableau, learn that. Then go to Python. You have to learn Python if you have to really understand, what kind of data modeling can be performed. Okay. तो पहले आप ये basic, this is a roadmap if you want to become a good
data analyst, because data analyst is a very essential skill in FP&A profession. Okay, अगर आप आज के टाइम पे data analyst नहीं हो, smart नहीं हो, आपकी story telling अच्छी नहीं है, you cannot really make it big. Okay, so you have to follow a basic roadmap first, then you have to go for advanced certifications. Then आप Anaplan की ले लो. You can go for Sage in, lot of tools. I can say that on my tips, 100-150 tools है market में अभी, and you can Right. learn as much as you want. But again, this organization mein you are aiming, if you are planning to go into a manufacturing company, then research ki kaun sa FP&A tool is being used by manufacturing industry, and learn that. You should not learn unstructuredly कि आप कुछ भी सीख लो. पहले अपना विजन बनाओ कि किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, किसी कोर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है, and उसके हिसाब से what are the tools that are used by that industry, then aim for certifications. Not required at the entry level. When you want to go into entry level, आपको FP&A में जाना है, just follow simple roadmap: Excel, Power BI, Tableau, and Python. ये चार चीज करने से पहले you have to but learn finance. FP&A क्या है, वो भी ऐसा नहीं कि पहले आपने एक्सेल सीखना शुरू कर दिया तो Exactly. उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है. Hey, Right. plus So I'll just very quickly add one thing. जो अभिनव भी बोल रहा था कि ऐसे सीखने को देना, there are n number of tools. उसका कोई end नहीं है. आप बस लगे रहोगे और आपको still लगेगा कि मैं ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, because company to company, market to market, industry to industry, कभी कोई trend में होता है, कभी कोई trend में होता है. But what I would like to say is कि irrespective of the tool is just a platform. जो आपका right. concept है वो same है. अब जैसे अभिनव सर और मुझे, हम दोनों को एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन, टैबलू अच्छे से आता है. बट जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, या जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे साथ रखी जाती है, हमारे सामने रखी जाती है, तो जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर आपको टूल पे कोडिंग आती भी हो, कैसे करना है, क्या करना है, फायदा क्या, आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे. तो आई थिंक दैट वो जो थॉट प्रोसेस है, थॉट क्लैरिटी है, वो जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, वो होना काफी जरूरी है. जैसे अभिनव भी बोला था, पहले आप एफपीएनए के कोर प्रिंसिपल्स को सीखो, समझो, उसके बाद आप फिर एक टूल मास्टर करना स्टार्ट करो. एंड आई थिंक फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, फर्स्ट टूल दैट एवरीबॉडी शुड मास्टर इज डेफिनेटली एक्सेल. वंस यू हैव डन दैट, देन टैबलू पे जाओ आप, या टैबलू या पावर बीआई, बेस्ड अपॉन जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज करना चाह रही है, जो उनकी प्रेफरेंस है. एंड देन उसके बाद अगर आप और ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो पाइथन है, एसक्यूएल है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज Even वेल. generative AI, Gaurav. एआई की आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो कुछ एआई से रिलेटेड कुछ भी आप दिखाना चाहो तो कैसे हम यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी को, एलएलएम लैंग्वेज को, एआई टूल्स को, कैसे हम अपने फाइनेंस में यूज कर रहे हैं, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग जो हम दिखा पाए टू द पार्टिसिपेंट्स. See, I think I would like to say one thing here, right? I will show that, to a guy or a girl, who kind of proves me, tells me कि पहले कुछ लेकर आओ, right? राइट. ये तो यू वाला विल हैव know टू how. अर्न दिस. You have to अर्न earn दिस ये this. जो. Yeah, you have हाँ. to earn this. But I can say that, I will like to give you an idea what me and Gaurav have been doing, just to give you how we are leveraging generative AI and LLM frameworks in financial planning and analysis. तो गाइज एक बेसिक आपको एक यूज केस बताता हूँ. अर्चित सर, आपके लिए ऑडिट मास्टर क्लास के लिए, कि वी आर यूजिंग जनरेटिव एआई फॉर ऑडिट अनोमली डिटेक्शन. ओके, so what we are doing sir, हम पूरा we have client GL data, सारी data है client का, मेरे पास ledger data है, invoices है. I am storing that in a platform, and then anyone can interact through a chat assistant. Can you detect anomalies, can you do that, and basis simple prompts, we are getting the samples, these are the areas, why we are seeing a risk here. And even I can compare that record with any बैंक स्टेटमेंट के अंदर सर हाईलाइट हो जाते हैं, ये रिकॉर्ड यहाँ अच्छा, पे पड़ा हुआ है. अमेजिंग. So तो मतलब हमको एक रियल आर्टिकल मिलने वाला है वर्चुअल असिस्टेंट के फॉर्म में. yeah, we are creating, and that is what we are naming it as CFO assistant. Okay, so we are creating that chatbot sir, and I think we are working with one of the biggest institutes in ओके. India. I can disclose I should not disclose the name officially. Okay, राइट but राइट but राइट we are राइट. working on white papers,
and it will be Okay. published soon on Great. generative AI for audit. So Great. these are Great. Great. this is one use case, but definitely I would like to say to all of you, once you learn this basic roadmap, then yeah, you should learn generative AI. It will save time, and I think I would be more than happy. Archit sir, if you allow, maybe this year we can record one more class on generative AI. डेफिनेटली 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 एक क्वेश्चन आ रहा है कि हर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं इन दिस डोमेन? तो सर उसके लिए हमारी मास्टर क्लास देख उसमें लास्ट क्लास है। नहीं, I राइट। think I would like to answer that कि firstly हम्म। you need to understand कि कौन सी कंपनी में आपका इंटरव्यू है, so you need to learn about that industry. So go through the annual report of the company to understand the income statements. Okay, आप income statement पढ़ो, balance sheet पढ़ो, and then try to read the commentary, right? Then also read about other companies in the same industry to understand the overall framework, how that industry is performing. Read about industry size, read about that industry KPIs. आपको ये सारा पता होना चाहिए. That is one thing. The second thing is core finance concepts, right? People will ask you, how to budget, how to forecast, what are the different methods, how we can predict the performance next year, what are the ways. This is more related to budgeting and forecasting. Performance management ka, you have to learn about ratio analysis. सबसे फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का होता है, वो पूछेगा आपको कौन सी रेशियोज का कौन से सिनेरियो के लिए विच शुड आई यूज, हाउ टू कैलकुलेट इट. Then storytelling is also one element that is being checked. Okay, तो स्टोरी टेलिंग में आपको एक केस दिया जाता है. आई कैन टेल यू अबाउट वन ऑफ द रिसेंट इंटरव्यूज दैट वाज हैपेंड फ्रॉम आवर प्रीवियस मास्टर क्लास ऑफ अ कैंडिडेट विद बीसीजी. बीसीजी में उनसे पूछा गया था एक केस स्टडी, and he was asked to analyze the data and present that in a form of a story. Okay, so इस टाइप का भी आपके पास आ सकता है. So prepare for that. How you will communicate your results to the senior management. And last part जो आपको करना चाहिए, that is more on the technical side, right? तो आपकी Excel skills बहुत ही sharp होनी चाहिए. People will ask latest functions like sum product, index match, how to use that, power query, power pivot. So you need to learn those concepts, if you have to prepare comprehensively for the interview. राइट एच राइट राइट। लुकअप है, जैसे अभी आई थिंक स्टिल काफी लोग इंडस्ट्री में अभी भी वी लुकअप या एच लुकअप यूज करते हैं, उसका बिल्कुल एडवांस वर्जन आ चुका है, दैट इज एक्स लुकअप. सो वो हो गया. एंड एडिशनली आई वुड जस्ट लाइक ट्राई टू समराइज कि अभी ना बेसिकली जो बोल रहे हैं आपको ये है कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना काफी जरूरी है व्हाइल यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. सो फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे वेदांता में इंटरव्यू देने जाते हैं, सो दे हैव डिफरेंट बिजनेस स्ट्रीम से वो डिफरेंट मिनरल्स में काम करते हैं. अगर मान लो वो सिर्फ उनके ऑयल बिजनेस के लिए आपका इंटरव्यू है, तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ऑयल बिजनेस में किस तरीके की कंपनीज होती हैं. लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का जो बिजनेस मॉडल है या डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है, अपस्ट्रीम का क्या मतलब है. एंड जैसे फॉर एग्जांपल पीछे जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया था या कुछ भी, तो एकदम से ऑयल प्राइसेस स्पाइक अप हो गए. तो यू नीड टू लाइक अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. सो जब आप उन्हें कमेंट्री देंगे, एज अभिनव इज मेंशनिंग कि जब आप उनके रिजल्ट्स देख रहे हो, अब आपको दिख रहा है कि 100 से 50 हो गया, तो यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन. एक तो आप उनकी कमेंट्री पढ़े, प्लस आप जो इंडस्ट्री रिसर्च और कंपनी की रिसर्च करोगे, आपको खुद ना वो सेंस समझ आ जाएगी कि अगर वो 100 का 50 हुआ क्योंकि इस बार ऑयल के प्राइस एकदम से गिर गए ड्यू टू दिस फैक्टर और ड्यू टू लाइक एनी अदर फैक्टर. तो इस तरीके के आपको थोड़ी सी एडिशनल रिसर्च करनी पड़ेगी इनिशियली. एंड आई वुड से लाइक फ्रॉम आवर पर्सनल एक्सपीरियंस कि इनिशियली ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट यू एक्चुअली हैव टू बिल्ड दैट हैबिट बिकॉज दिस इज द लाइक कोर क्रिटिकल स्किल दैट यू नीड टू हैव एज अ एफपीएनए एनालिस्ट. एंड आप इस पे कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहे एंड श्योर लाइक विद इन 5 to 6 months ऑफ पीरियड आप एकदम इस चीज को मास्टर कर लोगे, एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू to understand any company. आप फिर बड़े easily you'll be able to crack interviews and all that stuff. So this is very important कि आप in depth business को समझने की कोशिश करें जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं. कैन फ्रेशर्स आल्सो जॉइन दिस डोमेन?
एब्सोल्युटली आई थिंक Great. अभिनव और मैं ऐसे ही स्टार्ट हुए थे. सो Yeah. माय फर्स्ट जॉब पोस्ट क्वालिफिकेशन वाज विद वेदांता एंड आई वाज वर्किंग इन देयर गुड़गांव ऑफिस जहाँ पे उनका कॉर्पोरेट एफपीए बैठता है. एंड आई यूज्ड टू वर्क विद देयर ग्रुप सीएफओ डायरेक्टली एंड आई वाज पार्ट ऑफ एफपीए टीम ओनली. सो इट जस्ट अ मिथ. ये है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है. लाइक ऑडिट्स और टैक्स की जॉब काफी ब्रेड एंड बटर की तरह मतलब बट हम्म रही होती है. लिटरली आप आओ प्रसाद भंडारा में लगा हुआ है, कोई सा भी चूज करो आपको आराम से मिल जाएगी. बट फॉर लाइक लाइक गेटिंग इनटू एफपीए समटाइम्स आपको थोड़ा सा चूजी और थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा. बिकॉज जो आपके इंटरव्यूअर्स भी है वो काफी स्पेसिफिक स्किल सेट्स के लिए ढूंढ रहे होते हैं. अगर आपके हम्म अंदर वो क्वालिटी है, उन्हें वो स्किल सेट दिखता है, तो डेफिनेटली दे विल हायर यू. एंड फ्रेशर्स को डेफिनेटली हायर करते हैं. एंड एक मिथ और जो है मार्केट में चलता है कि इस प्रोफाइल के लिए एमबीएस को प्रेफर करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. कुछ साल पहले तक सिर्फ एमबीएस इस प्रोफाइल को रूल कर रहे थे. बट आज के टाइम पे सीएस को भी इक्वली उतना ही चांस या उतना ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट. सो इट्स नॉट कि हम्म सीएस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या दिस फील्ड इज नॉट फॉर सीएस. CAs are definitely in this profile. They are, like doing good in this profiles. And freshers को भी हायर किया जाता है. एंड राइट आज के राइट टाइम पे तो एक बेस्ट पार्ट है जो कि अर्चित सर पहले पूछ भी रहे थे कि अब तो बिग फोर्स भी इस प्रोफाइल में घुस गई है. तो सीएफओ एडवाइजरी में आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. कि post qualification after multiple attempts do we have a chance to get into FP&A role अगर attempts ज्यादा हो गए हो तो. आई थिंक इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी. अब जैसे इफ आई टॉक अबाउट वेदांता, वो सिर्फ कुछ भी हो जाए वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्टर्स को लेती है. लाइक हम्म आप हम्म हम्म चाहे कितने अच्छे हो, दे विल नॉट कंसीडर. एंड उनके कुछ इनफैक्ट बीकॉम तक के क्राइटेरिया है कि आपके कॉलेज में 75% होने चाहिए, ट्वेल्थ में 90% होने चाहिए. अगर आप रैंक करो बट आपके ट्वेल्थ में 90 से कम थे फॉर एग्जाम्पल, तो दे विल स्ट्रेट अवे इग्नोर यू. सो आई वुड से हम्म दैट दिस इज अ वेरी कंपनी स्पेसिफिक थिंग कि वो मल्टीपल राइट अटेम्प्ट्स को इनवाइट करती है, शॉर्ट लिस्ट करती है, उन्हें कंसीडर करती है या नहीं. आई वुड से कि डू नॉट डिस्करेज. आप इस तरीके से अपने माइंड में ये मत लेके बैठो कि मल्टीपल हम्म अटेम्प्ट है तो हम नहीं घुस पाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ मिथ. हार्डली आई थिंक 5 to 10% कंपनीज ऐसी होगी जो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्टर्स पे रिजेक्ट होगी. इफ यू एक्चुअली डू वेरी गुड इन योर हम्म इंटरव्यू इन केस यू गेट शॉर्ट हम्म लिस्टेड, आई एम हम्म श्योर कि they will हम्म definitely like consider you हम्म irrespective of the attempts you actually took. ये पैसा कितना मिलने वाला है इसमें, पैकेजेस कैसे मिलने वाले हैं. अगर मैं ऑडिट टैक्स के पैकेजेस की बात करूं तो दे आर इन द रेंज ऑफ 9 to 10 lakhs offered by the big four and top firms. FP&A की प्रोफाइल में बाय द इंडस्ट्री एंड बाय द कंसल्टिंग फर्म्स क्या रेंज रहती है सर नॉर्मली स्टार्टिंग में, और 5 साल बाद किस टाइप की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. तो सर अगर मैं अपने वेदांता की वैसे बात करूं, एंड आई थिंक इट वाज 6-7 years ago, हम्म आई मेरा स्टार्टिंग पैकेज 13 था सर अच्छा. उस टाइम. ग्रेट ग्रेट. अभी तो शायद वेदांता में भी 15 प्लस हो गया. हम्म लाइक आई एम नॉट श्योर, हम्म ऑनेस्टली आई एम नॉट फॉलोइंग. हम्म तो आई थिंक डेफिनेटली आप 12 प्लस के ऑनवर्ड्स काफी अच्छी कंपनी. लाइक I इफ आई think टॉक 12 अबाउट, to 18 is the range, Gaurav. right, 12 to हम्म for 18. freshers, right. Yep. And the हम्म kind of growth that you can see is I think 35 to 45 years down the line is actually possible. And I have, like, I and Abhinav have seen lot of people actually achieving that. Again, it हम्म depends upon how you perform in that particular company, or like वो company भी कैसी है. Because so all it is, like we cannot just simply एक fact नहीं है कि हाँ भाई इतना हो जाएगा. It depends from person to person and the kind of circumstances they encounter in their journey. बट इट्स एक्चुअली वेरी इजीली डूएबल कि आप 30 प्लस मान सकते हो. 5 साल बाद आप आराम से पहुंच सकते हम्म हैं. एंड व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट, तो 12 to 15 इज अ वेरी हम्म रियलिस्टिक हम्म काइंड ऑफ नंबर हम्म जो आपको इजीली स्टार्टिंग में मिल सकता है. एंड अगेन हम्म इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपको किस तरह की हम्म अपॉर्चुनिटीज या कैसा मिल रहा है. सो हम्म बट जनरल on an average, I think these figures sound like is what my analysis is. right. And guys, these numbers are more than the numbers you will get in the profiles of audit and taxation, number one. And number two, यहाँ पे जो exit opportunities मिलेंगी वो भी आपको ज्यादा मिलेंगी,
क्योंकि ऑडिट टैक्स के प्रोफाइल में आपको इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड मिलेंगी, बट फॉर द एफपीएनए डोमेन यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, प्लस राइट। अक्षय सर, इसमें एक चीज जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे अगर अब हम मॉनेटरी टर्म्स पे का एक टाइम के बाद बंदा उस साइंस में भी सोचता है, तो अब क्या है कि राइट। आप इनिशियल लेवल पे किसी छोटी सी फर्म से स्टार्ट कर दोगे, बट एक बार आप जब बिग फोर घुस गए ना, तो आप बिग हम्म। फोर के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। आप उन्हीं 4 कंपनी 5 कंपनी मैक्स टू मैक्स टॉप 10 इसके, क्योंकि फिर आपको वो 5 के अलावा ना नीचे वाला कोई वो पैकेज भी ऑफर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक तो बात है। आप अल्टीमेटली उन्हीं 4 कंपनियों में बंद के रह जाते हो, आपके पास बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं होता। एंड आई थिंक सिमिलरली टैक्सेशन में भी यही चीज कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। बट राइट। एफपीएनए में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरी इंडस्ट्री आपके लिए समुंदर है, आपका जहां मन करे वहां जाके गोता लगाओ। Even abroad, राइट। overseas, a lot of openings are there. So, राइट। I agree. It's, universal FP&D profile. यस। Right, right. And guys, these numbers are more than the numbers you will get in the profiles of audit and taxation, number one. And number two, यहाँ पे जो exit opportunities मिलेंगी वो भी आपको ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि audit tax के प्रोफाइल में आपको इंडस्ट्री में opportunities बहुत limited मिलेंगी, but for the FP&A domain you will get more opportunities in the industry also, प्लस right? अक्षय सर, इसमें एक चीज जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे अगर अब हम मॉनेटरी टर्म्स पे का एक टाइम के बाद बंदा उस साइंस में भी सोचता है, तो अब क्या है कि Right. आप इनिशियल लेवल पे किसी छोटी सी फर्म से स्टार्ट कर दोगे, बट एक बार आप जब बिग फोर घुस गए ना, तो आप बिग हम्म। फोर के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। आप उन्हीं 4 कंपनी 5 कंपनी मैक्स टू मैक्स टॉप 10 इसके, क्योंकि फिर आपको वो 5 के अलावा ना नीचे वाला कोई वो पैकेज भी ऑफर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक तो बात है। आप अल्टीमेटली उन्हीं 4 कंपनियों में बंद के रह जाते हो, आपके पास बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं होता। एंड आई थिंक सिमिलरली टैक्सेशन में भी यही चीज कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। बट राइट। एफपीएनए में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरी इंडस्ट्री आपके लिए समुंदर है, आपका जहां मन करे वहां जाके गोता लगाओ। Even abroad, राइट। overseas, a lot of openings are there. So, राइट। I agree. It's, universal FP&D profile. यस। राइट। राइट। कि भाई knowledge of Indians is required for this profile or not? I think good to have, but if you don't have it, that's also fine. But yeah, good to have. राइट। नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। राइट। ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं है गाइस कि इंडेक्स की Mandatory नॉलेज नहीं है. इस प्रोफाइल के लिए चाहिए। मोस्टली इंडेक्स नॉलेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर ऑडिटिंग प्रोफाइल एंड योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोफाइल। यहाँ जो रिपोर्टिंग होनी है वो मैनेजमेंट के लिए होनी है। उनको बिजनेस के नंबर से मतलब है, उनको रिपोर्टिंग से मतलब नहीं है कि भाई कंप्लायंस रिपोर्टिंग क्या हो रही है, बाहर के शेयर होल्डर्स को आप क्या बैलेंस शीट दिखा रहे हो उनसे मतलब नहीं है। यहाँ जो आप रिपोर्टिंग करने वाले हो मैनेजमेंट को, उनको आपके रेवेन्यूज, आपकी कॉस्ट और आपके प्रॉफिट से मतलब है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आप कितना ग्रो कर रहे हो, वो वाली रिपोर्टिंग यहाँ पे होने वाली है। और जैसे डैशबोर्ड अभी गौरव सर ने दिखाया वैसे डैशबोर्ड आप मैनेजमेंट के लिए क्रिएट करने वाले हो। तो इसलिए इंडेक्स की नॉलेज इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन। इंटरव्यू में हो सकता है कि आपसे एक दो सवाल पूछ लिए जाए, लेकिन प्रैक्टिकली आप इंडेक्स का काम बहुत ही कम करने वाले हो उसमें। क्या एआई एफपीएनए वालों को खा जाएगा? हितेश, सबसे पहले अगर एआई खाएगा ना, तो पहले अकाउंटेंट को खाएगा, बुक कीपिंग वालों को खाएगा, ऑडिटर्स को खाएगा। एफपीएनए तो बहुत एडवांस फील्ड है जो कि एआई को यूज करेगा पहले अपनी एनालिसिस करने के लिए। ओवर टू यू सर, क्या आप इस क्वेश्चन को एक बार बताना चाहेंगे, एआई कैसे हमको डैमेज करने वाला है या फिर हमको हेल्प करने वाला है फॉर दीज प्रोफाइल? ये एक See, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। I think I would answer that कि जब 1990s में इंटरनेट आया था ना, तो there was a राइट। revolution, right? ये चला जाएगा, वो चले जाएगा, So people who did not adapted, they did not learn, were the people who were, उनकी नौकरी चली गई थी, या अभी भी वो struggle करते हैं. So I think let's not think about the negatives, guys, right? AI has come and it is there to stay. You know, let us understand, how we can leverage AI for our day-to-day use, how we can make our work better. ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी प्रोफाइल को नहीं खा सकती. काम करने के तरीके बदल सकते हैं 2 years डाउन द लाइन. जो आज हम कर रहे हैं, राइट, इट कुड बी टोटली डिफरेंट. ओके, 2 साल बाद हम एफपीएनडे में हम कुछ डिफरेंट तरीके से काम करें, राइट. 5 साल पहले जब मैं और गौरव काम करते थे एफपीएनडे में, इट वाज अ बैक ऑफिस फंक्शन, राइट. एवरीथिंग वाज हैपनिंग बैकवर्ड्स, राइट. यू नो 3 साल में इतना शिफ्ट आ रहा है. पीपल आर गोइंग फॉर फंड रेजिंग, पीपल आर गोइंग फॉर एक्विजिशंस.
तो forward looking analysis has become important now with the AI वाला bit जो आ गया है, उससे people have become smarter, efficient. It's not that किसी की जॉब जा रही है, राइट? जॉब अगर जाएगी तो उनकी जाएगी जो सीखेगा नहीं, प्लस जो आपके रेपिटेटिव टास्क होते हैं, दैट विल बी ऑटोमेटेड फॉर श्योर। ओके, तो एफपीएनडी के अंदर भी कुछ टास्क होते हैं, ऑडिटिंग में भी होते हैं, अकाउंटिंग में भी होते हैं, है ना? तो वो सारे टास्क कुछ जो रेपिटेटिव नेचर के है, उसको हम उसका मॉडल बना के उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। बट जब आप कुछ चीज करते हो तो नई चीजें आ जाती है, दैट्स द रूल ऑफ लाइफ, राइट? तो एक क्वेश्चन और आ रहा है सर कि क्या अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसे फाइनेंस के रोल्स में जाना है तो एफपीएनए की प्रोफाइल हेल्प करेगी अपन को? व्हाट इज योर सर टेक सर? कैन हेल्प, बट वहां पे आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन साइड भी आपको नॉलेज होनी जरूरी है। सो जो यहाँ से आप बिजनेस नॉलेज या थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स पे जो आपकी पकड़ आएगी, यू नो कॉन्सेप्ट्स पे, या जो आपके इंटरनल मैनेजमेंट वाली टर्म्स है जैसे बिट्टा हो गया ये सब, तो ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स है, रेशियो एनालिसिस, रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये वाले कॉन्सेप्ट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफी हेल्प करते हैं। सो इन अ वे यस इट विल डेफिनेटली हेल्प, बट आपको वहां पे वैल्यूएशन के लिए भी जो एडिशनल चीजें सीखनी पड़ती है फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल, तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। Can ACCA students, MBA students, and commerce graduates, can they यस, also apply in the FP&A field? यस, एनीबॉडी कैन Yeah, गेट yeah, इनटू most of the एफपीएनडी। people, Archit, in our firm, are coming from that background only. So it's not like इनफैक्ट हमारे पास तो कुछ लोग बीटेक वाले भी है जो घुसे हुए हैं। एज एज वी मेंशन अर्लियर आर्यन अभिनव, कि इसमें कोई limitation दुनिया है। की कोई किताब, कोई वो नहीं, कोई लॉ नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी ने जैसे रेवेन्यू की डेफिनेशन इंडिया 615 आई थिंक, अगर सही बोल रहा हूँ मैं, वही है Right, इंडिया। right, तो उसमें right, लिखा हुआ है कि ऐसा ही है, यही रेवेन्यू है तो यही रेवेन्यू है, बात वहीं खत्म हो जाती है। हमारे में कुछ right, नहीं है। मैं किसी correct. चीज को भी रेवेन्यू बोल दूं, लाइक इन कंटेक्स्ट ऑफ एफपीएनडी, nobody can stop Mm, me, there is no mm, rule, no books, nothing, it's just mm, all your creativity. So anybody from any domain who mm. has like the required skill set can enter into this field, irrespective आप सीए हो नहीं हो, आप एमबीए हो, कोई सी भी डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ता।